Hello, Assalamu alaikum, good evening, and thank you so much for joining us back once again on Sports Tonight. मैं हूँ Roha Nadeem, and we are back with yet another episode, trying to keep you up to date with all the sporting events from around the world. हमें बहुत messages, comments आते हैं आप लोगों की तरफ से कि हम क्रिकेट के अलावा भी आपको थोड़ी सी एनालिसिस पेश करें आपने जो भी स्पोर्टिंग इवेंट्स हो रहे हैं फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, स्पेशली इन पाकिस्तान, बिकॉज देयर इज़ सो मच स्पोर्ट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान. हमारी कोशिश यही होती है कि जो भी करंट इवेंट्स चल रहे हैं, जहाँ पे भी पाकिस्तान के जो भी नौजवान खेल रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं और माइलस्टोन्स अचीव कर रहे हैं, अपने स्ट्रगल्स में लगे हुए हैं, हम उनकी स्टोरीज़ भी आप तक लेके आएँ, विच इज़ वाई वंस अगेन दिस एपिसोड विल बी all about all of the other sports, especially if you have a keen interest in Pakistan volleyball. Well, please stay tuned because later half of the show हमें join करेंगे पाकिस्तान वॉलीबॉल के कुछ बहुत important नाम जिनके साथ हम कुछ discussions भी करेंगे. But before that, buckle up as we take you through the news line, which is basically all of the sporting events from around the world. Starting with the American Major League Baseball, the Boston Red Sox defeated the Los Angeles Dodgers to win the three-game series 2-1. In the match played in Boston, the host team defeated the Dodgers by 4 innings to 3. The Boston Red Sox secured the victory thanks to Alex Bregman's two-run home run. Bregman's 13th home run of the season came in the 5th inning when he scored 2 runs against Dodgers at the start of the match, and in the end the Dodgers won the first game 5-2 while Boston won the second game 4-2. China's Shi Yuqi won the China Open Badminton, and China's Wang Zi successfully defended her title. In the men's singles, Yuqi defeated compatriot Wang Zhengsheng in 3 sets. In the women's singles finals, defending champion Wang Zi defeated Han Yui in straight sets. The Indonesian pair of Fajr Alfian and Muhammad Shahibul Fikri won the men's doubles title, while the women's doubles crown was won by the Chinese pair of Liu Shengzhu and Tan Ning. The first match of the Pakistan Street Child football team in the Norway Cup ended in a draw. The match between the Pakistan Street Child football team and the Norwegian club in Oslo was tied at 1 goal each. The opposing team scored a goal in the last minute to level the match. Teams from 25 countries are participating in the Norway Cup. Pakistan's Street Child football team won the silver medal in 2023 as well, while reaching the semi-finals in the later editions. जी, इंग्लैंड की विमेंस टीम जो है उन्होंने सक्सेसफुली अपना यूरो कप का टाइटल डिफेंड किया है. द विमेंस टीम डिफेंडेड देयर टाइटल एंड द फाइनल वाज प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड स्पेन, जिसमें उन्होंने स्पेन को हराया ऑन अ पेनल्टी शूट आउट. द मैच वाज टाइड 1-1 अंटिल द स्टिपुलेटेड टाइम, एंड देन उसके बाद शूट आउट के ज़रिए वो ये मैच जो है जीतने में कामयाब रहे. Mariona Caldente scored a goal to give the Spanish team the lead, and in the 57th minute, England's Alicia Russo equalized the match. In the end, extra time was given to make the match decisive. However, neither team could score the decisive goal, after which a penalty shootout was resorted to, in which England scored 3 goals while the Spanish team could only score 1 goal. जी, अब कुछ न्यूज़ पाकिस्तान की स्क्वॉश टीम के हवाले से. द वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश टीम चैम्पियनशिप पाकिस्तान डिफीट्स कुवैत 0-3 in their second match. Pakistan's brilliant performance in the World Junior Squash Team Championship defeated Kuwait in their second group match. In the ongoing event in Egypt, the national team defeated Kuwait and Brazil also in their first match. अब पाकिस्तान अपना तीसरा और आखिरी मैच खेलेगी against France. Pakistan has been placed in Group F in the event. Spanish cyclist Mavi Garcia won the second stage of the Tour de France women's cycling race. Mavi, who's 41 years old, is the oldest cyclist
to win a stage of the Grand Tour. The opening stage of the 9-stage race was a 110.4 kilometer mountain climb from Brest to Quimper. The Spanish cyclist completed the distance in just 2 hours 44 minutes and 26 seconds. Netherlands से Lorena Vibes was 3 seconds behind, and Mauritius से Kim Le Mokot Pinard completed the podium. Defending champion Tadej Pogacar of Slovenia has won the Tour de France cycling race. This is Pogacar's 4th title. He successfully defended his title by covering the 21 stages of the Grand Tour, covering a total distance of 3,298.3 kilometers in 76 hours and 32 seconds. Denmark's Jonas Vingegaard was second with a difference of 4 minutes and 24 seconds, and Germany's Florian Leibowitz was third with a difference of 11 minutes. The final stage of the race, consisting of a flat road of 132.3 kilometers, was won by Belgium. De Minaur saves 3 championship points to deny David Djokovic Fokina in Washington final. In a 5-7, 6-1 and 7-6 victory against David Djokovic Fokina, the Aussie saved 3 championship points on serve at 5-4 in the final set, but only after breaking from 30-0 when the Spaniard served for the title. De Minaur was 16 millimeters from defeat on his opponent's third match point, but a desperate lob clipped the sideline and helped him turn the point and match around. The biggest tennis title of Leylah Fernandez's career arrived at the DC Open on Sunday with the help of a terrific backhand and some superb returning and energy. Fernandez, who is a 22-year-old from Canada, is ranked 36th, and she wrapped up a week of tight matches with lopsided victory, defeating Anna Kalinskaya 6-1, 6-2 in the final. Fernandez earned her 4th singles trophy and first at a WTA 500 event. She came quite close to a Grand Slam championship as a teenager at the 2021 US Open. And last but definitely not least, Pakistan extending their winning run at the Under-19 Volleyball Championship. उनका impressive जो form है इस championship में, it is continued. Unfortunately, आज का match against Argentina, Pakistan lost, but it was the only game that they have lost so far. Is currently at the top of the table with 13 points and 4 wins. And of course, straight sets में Pakistan जो है अभी तक जा रहा था इस championship में, but unfortunately just this one setback against Argentina. Well, more on Pakistan volleyball coming on the other side of this short break. We'll be joined by some very special guests. हम पाकिस्तान वॉलीबॉल के प्रेजेंट और फ्यूचर के हवाले से कुछ डिस्कशंस करेंगे. Where is volleyball headed? And of course, the recent victory at the Asian level under 16 जो वॉलीबॉल चैम्पियनशिप थी उसके बारे में भी बात करेंगे. पाकिस्तान ने ईरान को फाइनल में हराया, कैसे पहुंचे फाइनल तक, कैसे ये टाइटल अपने नाम किया. Thank you so much for joining us back on Sports Tonight. आज का शो डेडिकेटेड है टू पाकिस्तान वॉलीबॉल. ऑफ कोर्स हम
देखते रहते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पाकिस्तान वॉलीबॉल के अचीवमेंट्स की, चाहे वो एज ग्रुप में हो चाहे वो नेशनली हो। और हम ये भी देखते रहते हैं कि पाकिस्तान वॉलीबॉल में कुछ अरसा पहले तक एक डिक्लाइन था। मिड 2000s में अगर हम देखें, अर्ली 2000s में थोड़ा सा डिसअपीयर सी हो गई थी स्पोर्ट, इतनी बातचीत नहीं हो रही थी, ना हम ग्लोबली उस तरह से रैंक कर पा रहे थे। बट अब क्योंकि हमारे एज ग्रुप में इस तरह के टैलेंट मौजूद है और ऐसे लोग इन चार्ज हैं कि हम ऐसे हेडलाइंस देखते हैं कि पाकिस्तान हैज़ जस्ट वन द एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैम्पियनशिप, तो माइंड में बहुत से सवाल भी आते हैं कि ये तैयारी कैसे हुई, इसके आगे की क्या प्लानिंग है, और ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म पाकिस्तान वॉलीबॉल का क्या फ्यूचर है। इन सब सवालों के जवाब के लिए आज हमने अपने शो में दावत दी है पाकिस्तान वॉलीबॉल से एसोसिएटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लोगों को। सबसे पहले I'm going to introduce Mr. Nasir Ahmed, who is the Director Technical, Pakistan Volleyball Federation. Assalamu alaikum Nasir साहब, welcome to the show. Thank you so much. Thank you for joining us. उनके साथ जी मौजूद हैं कफ़ायतुल्लाह साहब, he is the head coach of the Pakistan Under 16 Volleyball team. Thank you so much sir. Assalamu alaikum for joining. Thank you very much for again. जी आपके उनके साथ मौजूद हैं जी मोहम्मद तलहा, he is पार्ट ऑफ द अंडर 16 वॉलीबॉल टीम एंड मोहम्मद तलहा इस बार ये जो भी टीम जीती है उससे भी शामिल थे। तलहा अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल शामिल थे जी, शामिल थे। अभी हम आपकी परफॉर्मेंसेस के बारे में भी बात करेंगे और जो ओवरऑल टूर्नामेंट रहा उसके बारे में भी, बट आई एम गोइंग टू स्टार्ट सर विद यू बिकॉज आप कोच हैं इस टीम के। आप सबको एक्चुअली बहुत मुबारक हो इस विक्ट्री की। आपने जो टैक्टिकली जो चेंजेस किए, जो आपने मेक श्योर किया कि हम ईरान जैसे ओपोनेंट को फाइनल में विद दैट सेटबैक इनिशियली जो पाकिस्तान को था, उसके बाद कम बैक करके फाइनल में ईरान को हमने हराया, अपने नाम किया ये टाइटल। व्हाट डू यू हैव टू से एज अ कोच, हाउ प्राउड आर यू लुकिंग बैक एट दैट मैच एंड दैट टूर्नामेंट? जब ये टूर्नामेंट के लिए प्लानिंग शुरू हुई थी तो हमारे चेयरमैन है जो यूकूब साहब, उन्होंने जी जी तो उन्होंने बड़ी कोशिश की कि हमारा जो कैंप है वो इस्लामाबाद में लग जाए, लेकिन कुछ नागुज़ीर हालात की वजह से वहाँ पर ऑलरेडी सीनियर कैंप चल रहा था, अंडर 19 कैंप चल रहा था, लड़कियों का कैंप चल रहा था। तो जो हमारे और हैं पंजाब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड वाले, उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद सिर्फ वॉलीबॉल के लिए नहीं है, तो इसलिए आप इस कैंप को कहीं और शिफ्ट करें। तो फौरी तौर पर चौधरी साहब ने आर्मी डायरेक्टोरेट से बात की, उनके डीजी से बात की, उनसे रिक्वेस्ट करके हमारा जो कैंप है आर्मी एटर्ली सेंटर अटक में लगाया गया। उनके पास हाल की फैसिलिटी थी, उन्होंने हमें अकोमोडेशन दी, उन्होंने हमें खाना हर चीज़ अरेंज करके दी, ट्रैक उनके पास अवेलेबल था ट्रेनिंग के लिए, जिम बहुत अच्छा था। तो हमने वहाँ पर जो है ये कैंप को स्टार्ट किया अंडर 16 एशियन चैम्पियनशिप को टारगेट करते हुए कि हमने उसमें पार्टिसिपेट करना है और इंशाल्लाह ताला उसमें रिज़ल्ट भी लेके आना है। तो इसी चीज़ को हमने देखते हुए बाकी सारी चीज़ों को, जो वहाँ पर ज़ाहिरी बात है एक नई जगह थी, नया माहौल था, आर्मी का सेटअप था, बच्चे सिविलियन थे, उसके अंदर रहते हुए लेकिन हमने बच्चों ने बहुत कोऑपरेट किया और बहुत बहुत ज़्यादा कोऑपरेट, आप बिलीव नहीं कर सकते कि वहाँ पर पाबंदियाँ तो वही हैं, आर्मी के सेंटर में एक आर्मी का माहौल ही मिलेगा वहाँ पर आपको, लेकिन बच्चों को मोटिवेट करके, उन्हें हौसला दे के, उन्हें तसल्ली दे के कि बेटा थोड़ा टाइम है, गुजर जाएगा, हमने हमारा टारगेट बहुत बड़ा है, हमने उसी को अचीव करना है। इस चीज़ को सामने रखते हुए बच्चों ने माशाल्लाह वहाँ पर बहुत और दिल लगाकर मेहनत की। और फिर जब हम उसके बाद इस्लामाबाद शिफ्ट हुए, टूर्नामेंट में जाने से 1 माह पहले हमें इस्लामाबाद में जगह मिल गई, सीनियर टीम जो है वो अपना इवेंट खेल चुकी थी, हमें स्पेस मिल गई वहाँ पर रहने की। यहाँ पर आए, यहाँ पर अंडर 19 का कैंप चल रहा था, माशाल्लाह वो 3 साल से टीम कंटिन्यू इकट्ठी ट्रेनिंग कर रही है, एक ही कोच के अंडर है, बहुत अच्छी अभी जो खेल रही है। आपको वर्ल्ड कप के परफॉर्मेंस आप देख रही हैं उनके साथ। तो हमें ये मौका मिला कि हम वहाँ पर आए और फिर हमने उनके साथ फ्रेंडली मैचेस खेले। बिल्कुल, वो आपको एज प्रेपरेशन में भी हेल्प करेगी वो चीज़ जब आप अपने सीनियर्स के साथ compete करेंगे। और हमारे साथ एक फॉर्मर कैप्टन जो हैं वो भी मौजूद हैं एंड ही इज़ करंटली चार्ज ऑफ द टेक्निकल। आप मुझे थोड़ा सा अपने रोल के बारे में बताएं कि आपके अंडर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं और आप किन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स पे काम कर रहे हैं? जी, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल हैविंग मी। मेरी जो ड्यूटी है ये पिछले 2 साल से चेयरमैन साहब ने मुझे कहा कि आप, जब मैं रिटायर हो रहा था तो उन्होंने कहा जी आप फेडरेशन के साथ एसोसिएट हो जाए, हम आपको एज ए डायरेक्टर टेक्निकल, आप जो हमारी, क्योंकि पहले जो हमारा सिस्टम था वो मैनुअली चल रहा था, हमारे पास सोशल मीडिया का कोई इतना वो ट्रेंड नहीं था, ना कोई उसको देखता था,
तो आपको जैसे पता है कि अभी जो दौर चल रहा है, जो करंटली चल रहा है, ये सोशल मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली। तो हमने मुझे फिर ये उन्होंने कहा जी आपने सोशल मीडिया, टेक्निकली कोचेज़, ईच एंड एवरीथिंग जो भी टेक्निकली है उसको आपने टैकल करना है। तो हमने आते ही अल्हम्दुलिल्लाह कि अपनी सोशल मीडिया टीम बनाई और अपना प्रेजेंस बना दी, एक social प्रेजेंस media पे। बना दी सोशल मीडिया के कि पाकिस्तान में कुछ हो रहा ज़ाहिर है है। लोगों को पहले पता वो तो चले बिहाइंड कि द क्या सीन काम होता हो रहा था, है। बिहाइंड द कैमरा होता था, लोगों को पता नहीं होता था। Right. हमने अपने जो भी प्लेटफॉर्म है सोशल बता भी दें मीडिया आपके उसका नाम क्या है जहाँ पे जी, लोग follow पाकिस्तान कर वॉलीबॉल सकें? फेडरेशन के नाम से हमारा फेसबुक पे भी पेज है और यूट्यूब चैनल भी है, इंस्टा पे भी है, एक्स पे भी, हम जितने भी है, सोशल मीडिया ठीक है। प्लेटफॉर्म है हम उस पे फुली एक्टिव हैं अभी। और हमारे फॉलोअर्स जो है वो भी काफ़ी माशाल्लाह बड़े हैं पहले की निस्बत। पहले तो था ही नहीं, लेकिन तो ये आपने जो हाईलाइट की है ना चीज़, ये बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया के थ्रू आप दुनिया को भी बताएं, अपने लोकली भी ये मैसेज स्प्रेड करें कि ये वी आर एक्टिव एंड वी आर डूइंग सम ग्रेट वर्क। सो इफ़ यू गाइज आर वाचिंग एंड इफ़ यू वांट टू नो पाकिस्तान वॉलीबॉल के साथ हाउ टू गेट इन टच, एंड अगर आप एक स्पेशली अगर आप एक यंग प्लेयर हैं, इफ़ यू आर अ यंग boy or a young girl watching and you want to get in touch and get involved with Pakistan volleyball, I think that's a great way to do that. हम थोड़ा सा अब डेवलपमेंट के ऊपर भी बातचीत करेंगे, बट तलहा मैंने आपसे क्विकली ये ज़रूर पूछना है, आप कितने साल से वॉलीबॉल खेल रहे हैं? आपकी वॉलीबॉल की जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई? सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे काफ़ी यानी कि 1.5 साल हो गया वॉलीबॉल खेलते, और कोचिज़ की मेहनत भी बहुत है हमारे पीछे, और उसके अलावा जो हमारे वॉलीबॉल के चेयरमैन हैं उन्होंने भी काफ़ी यानी कि पंजाब भर में 3 से 4 जगहों में कैंप लगाए अंडर 16 के। ठीक है। और उनमें एक कैंप हमारे तानले वाला शहर में भी लगा हुआ है, उसमें वहाँ में हमारे कोचिज़ हैं, उस्ताद हैं, जो सर सफ्तैन हैं इंटरनेशनल रेफरी हैं, उसके अलावा जैद परवेज़ हैं, वो हमें वहाँ कोचिंग करवाते हैं। उसके बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी हमें, हम पाकिस्तान के जो वॉलीबॉल है वहाँ पे नेशनल टीम में सेलेक्ट हुए। उसके बाद हम अपने कोच सर कफ़ायतुल्लाह साहब के पास गए, उन्होंने हमें हमारी खामियाँ बताई, खूबियाँ बताई। जो हमारी पहले खामियाँ खूबियाँ बताई कि पहले खामियाँ बताई? पहले खामियाँ बताई वो ज़्यादा ज़रूरी है। जी, जो खामियाँ बताई थी हमने उन पे यानी कि कवरिंग करना शुरू कर दी। ठीक है। बहुत ज़्यादा कवर कराया कोच साहब ने, मैं 2-3 अच्छा, माह आप में। जब नेशनल टीम में सेलेक्ट हुए तलहा, वो कैसी फीलिंग थी अंडर 16 की जब कॉल आई आपको? जी, बहुत यानी कि एक हम बता नहीं सकते वो क्या फीलिंग हमारे दिन, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी थी और हमने उसको संभाला भी और आगे मेहनत भी जारी रखी। ज़ाहिर है आपके जब किफ़ायतुल्लाह साहब जैसे कोच के अंडर अगर आप काम कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, हमने इस चैम्पियनशिप में भी देखा कि इस एज ग्रुप के साथ काम करना, इसके क्या चैलेंजेस हैं, ये ज़रा आप एज अ कोच हमें बताएं कि हाउ डिफ़िकल्ट और हाउ इजी इज़ इट टू वर्क विद दिस एज ये ग्रुप? बच्चे बिल्कुल नए थे मतलब एक्सपीरियंस नहीं था, इंटरनेशनल लेवल पे तो बिल्कुल नहीं था, नेशनल लेवल पे भी शायद किसी ने 1 या 2 टूर्नामेंट खेले होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि टारगेट बहुत बड़ा था और हमने इसी चीज़ को फोकस करते हुए इनके मोराल पे, इनके जो कॉन्फिडेंस है उस पर काम किया, इनकी गलतियों को करेक्शन की, गलतियों की रेशो को कम किया। जब वहाँ पर गए और जाते ही हमारा मैच वर्ल्ड की टॉप टीम है कोरिया, उनके साथ हुआ और हम बिल्कुल पूरा आते बच्चे कॉन्फिडेंस में थे कि यार इंशाल्लाह ताला अगर हम कोरिया को बीट करेंगे तो फिर आगे वाले मैचेस हमारे लिए आसान हो जाएंगे। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी इनकी कोरिया के ख़िलाफ़, मतलब स्टेट 3-0 ने कोरिया को बीट किया। वो पहला मैच जीतने के बाद इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अगला सऊदीया को अंडर 20 3-0 बीट किया, उसके बाद हमने ताइवान को 3-0 बीट किया, उसके बाद हमने इंडोनेशिया को 3-0 बीट किया, फिर ईरान के साथ हमारा पूल मैच आया, लास्ट टाइम की विनर टीम थी, उसको हमने 3-1 बीट किया। उसके बाद हमारा मैच मुकाबला रवायती हरीफ इंडिया के साथ आ गया और इंडिया के साथ जब मैच आता है तो हमारी पूरी कौम की उम्मीदें सिर्फ एक ही होती हैं, यार टूर्नामेंट हार जाओ पर इंडिया से नहीं हारना। ये हमें पीछे से मैसेज भी आते हैं, कालें भी आती हैं और पीछे से प्रेशर भी होता है। तो इस चीज़ को देखते हुए बच्चों को उनके मैच भी हमने देखे, उनको ऑब्जर्व भी किया, उनकी मतलब है हमने उनको वॉच किया और उनकी खूबियाँ और खामियाँ जो है हमने टीम के सामने रखी, टीम के साथ मीटिंग की, उन्हें बताया कि उनकी वीकनेस क्या है, आपकी खूबी क्या है। इस चीज़ को सामने रखते हुए हमने इंडिया को अंडर 23 सेट 3-0 हमने बीट किया और ये एक ऐसी अचीवमेंट थी जिससे मेरे ख्याल में वो जीत की खुशी
जो बाद में हमें मिली वो उसने दुबाला कर दिया उस जीत को। बिल्कुल, और ये इंडिया, ईरान, ये ऐसे टीम्स हैं जिनमें इतना ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी चल रहा है वॉलीबॉल का, पूरे साल उनके काम होते हैं। आप भी क्योंकि इतने साल खेले हैं पाकिस्तान की तरफ से, कप्तानी भी की है, ये कितना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए अब अपनी टूर्नामेंट, ये जो चैम्पियनशिप्स आती हैं इनकी तैयारी को प्रॉपर प्लान करना है एक स्ट्रैटेजी के साथ, क्योंकि जो सामने ऑपोजिशन है वो तो कई कई महीने से तैयारियां भी कर रही हैं, डिफरेंट कैंप्स भी लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया है। एक्चुअली होता ये है कि पिछले कई सालों से हमारा फोकस टोटली ग्रास रूट लेवल पे था। हमारी जो जितनी भी लोकल एसोसिएशनें हैं डिवीजन लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, हमने उनको एक्टिव की है। हमने अपनी मदद आपके तहत जो एसोसिएशनें हैं उन्होंने फॉर एग्जांपल हमारी पंजाब की 9 डिवीजन्स हैं, 9 डिवीजन्स में जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं वो पंजाब से हैं। तो हमारा ये था कि पहले हमारा पंजाब KPK से बेटर होता था वॉलीबॉल में, अभी KPK बेटर है पंजाब से, तो वो हमारा थोड़ा सा लेवल डाउन था। तो वो प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि नहीं भाई, हम अपनी जो एसोसिएशन है इनको एक्टिव करें और लोकल जिस तरह ये तलहा आया, जितनी भी हमारी ये अंडर 16 की लाट है, जितने भी ये बच्चे हैं ये उन्हीं कैंप में से हैं। सियालकोट में था, रावलपिंडी में था, शकरगढ़ में था, फैसलाबाद में, बस डिफरेंट जगहों पे था हमारा, KP में भी चल रहा था। तो हमारा जो टोटल फोकस था वो ग्रास रूट लेवल पे था। और हमारी जो एशियन चैम्पियनशिप प्रीवियस, जो ये सेकंड एशियन चैम्पियनशिप थी अंडर 16, उससे पहले जो फर्स्ट एशियन चैम्पियन थी उसमें हमारी 4th पोजीशन थी। तो हमने टोटल अपना फोकस था वो अपनी यूथ पे लगाया कि ये ही कल को सीनियर टीम में जाएंगे। और ये लंबी प्लानिंग, जी लंबी प्लानिंग है, इसके पीछे एक टाइम लगता है, एक ये सालों टाइम और रिसोर्सेज। जी बिल्कुल ऐसा ही है। रिसोर्सेज की बात आपको पता है कि पाकिस्तान में एक सिवाय क्रिकेट के किसी को ना गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, ना कोई स्पॉन्सर उस लेवल के मिल रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, एक साल के लिए क्या आइडियल बजट होता है, जो कि आप लोग कहते हैं कि ये बजट आइडियल है, इसमें हम अपना पूरा तैयारी, प्लानिंग, लॉजिस्टिक्स, जो प्लेयर्स को बाहर भेजना या लोकली, एक फिगर थोड़ा आपके माइंड में जरूर होगा, कितने पैसे लगते हैं? डिपेंड होता है कि आपके एनुअली इवेंट्स कितने हैं, प्रोग्राम की बात करें आपके डिपेंड्स करता है कि आपके इवेंट कितने हैं। फॉर एग्जांपल कि इस साल में हमारे 4 इवेंट थे। पर इवेंट क्या कॉस्ट? पर इवेंट जो हमारी ट्रैवलिंग कॉस्ट है या लॉजिस्टिक जो टीम इवेंट पार्टिसिपेट करना है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन में आती है। ठीक है जी, जो जस्ट आपने ट्रैवल करके पार्टिसिपेशन करनी है। जब आपने यहाँ पे 2 महीने का 3 महीने का कैंप करना है, वो 20 से 25 बच्चों को आपने ट्रेन करना है, वो भी कम से कम वो तकरीबन आप कह लें कि 5 to 6 मिलियन वो भी आपको चाहिए। बिल्कुल ऑलमोस्ट इसमें मैक्सिमम 30 मिलियन एक टीम पे आपको एक्सपेंस आते हैं। वो ये आप लोगों को होना चाहिए कि जी जितनी भी जो भी मीडिया हजरात हैं इनको काइंडली एक रोल प्ले करना चाहिए कि जो हमारे प्राइवेट सेक्टर्स है, गवर्नमेंट है, उनको हेल्प आउट करना चाहिए फेडरेशंस को। अच्छा, एक कॉर्पोरेट जो थी सेक्टर से एक आपको मिल भी रही थी, आई थिंक एक जी हमारे पिछले 3 साल हमारे साथ एंग्रो ने किया था जी जी, और बड़ा अच्छा उन्होंने किया था, फाइनेंशियली हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काफी मिली नेशनल थी। चैंपियनशिप उसी के अगेंस्ट हमारा ये रिजल्ट भी बेहतर हुआ है। बिल्कुल, हमने पिछले 3 सालों में तकरीबन कोई 3 से 4 फॉरनर कोच हायर किए हुए थे। उसमें एनालाइजर है, उसमें कंडीशनल कोच है, उसमें हेड कोच है, उसमें असिस्टेंट कोच है। हमारे कोचेस भी जो है ना ट्रेन हुए हैं उसमें। ये जो अंडर 19 टीम है जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप अभी खेल रही है वो भी हमारे लोकल कोचेस हैं। ये जो अंडर 16 हमारी टीम चैंपियन हो गई एशियन की, ये भी हमारे लोकल कोचेस थे। और हमारे लोकल कोचेस जो हैं उनके बारे में थोड़ा बताएं, उनकी ट्रेनिंग, उनकी क्वालिफिकेशन किस तरह की है और क्या मयार है यहाँ पे लोकल कोचेस? यहाँ पर मैं अपने बारे में बताऊँ कि दुनिया में FIVB जो होल्ड करता है वॉलीबॉल को, उसके 3 लेवल हैं कोर्स के। मैंने लेवल 1 पाकिस्तान से किया था, लेवल 2 मैंने थाईलैंड से किया था और लेवल 3 मैंने हंगरी से किया था। यानी पाकिस्तान का मेरे ख्याल में सबसे क्वालिफाइड कोच मैं ही हूँ। और ये फर्स्ट टाइम मुझे ये टीम दी थी बेसिक बच्चों के लिए कि ताकि आप इस पे काम करें ताकि हमें आने वाले वक्त में अच्छे प्लेयर मिल सकें। और मैंने भी इसे एक चैलेंज समझ के एक्सेप्ट किया था, क्योंकि मुझे अपने आप पर भी और अपने रब पर भी और इन बच्चों पे भरोसा था कि मैं इंशाल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से काम करूँगा
और इंशाल्लाह रिज़ल्ट लेके आऊँगा। उसके बाद मैंने हमारे चेयरमैन साहब से मीटिंग हुई, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जो मेरे सबॉर्डिनेट होंगे वो भी मेरी मर्ज़ी के होंगे, ताकि हमारा जो कोऑर्डिनेशन है, एक टीम होती है ना, उसका कोऑर्डिनेशन होता है। अगर आपकी मर्ज़ी की टीम नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। मैंने एक्स पाकिस्तान है मोहिब रसूल, उसको मैंने लिया, और मेरा खिलाड़ी इनके साथ, इसका बैच फेलो है, मेरा स्टूडेंट है। उसके बाद एक बनू से था, लईक उस्मान, अच्छा था ट्रेनर, तो ऑलरेडी वो 3 साल से काम कर रहा था, मैंने उसको लिया। बड़ी महदूद टीम, ज़्यादा बंदे मैंने नहीं रखे, सिर्फ 2-3 बंदे ही हम थे जिन्होंने हमने इस पर काम किया। और हमारी डेली मीटिंग होती थी, डिस्कस होता था, हर प्लेयर को डिस्कस करते थे, उसकी खूबियाँ और खामियाँ डिस्कस करते थे, अगले दिन उस पर काम करते थे। अच्छा, आपने क्योंकि इंटरनेशनल टीम्स के साथ भी कोचिंग की है, क्या डिफरेंस आपको फील हुआ वहाँ के सेटअप में कोचिंग करना और पाकिस्तान में यहाँ पे सेटअप में? यहाँ पर प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारा कुछ हेड कोच पे डाल दिया जाता है। वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर आपका फिटनेस कोच अलहदा है, एनालाइजर अलहदा है, फिजियोथेरापिस्ट अलहदा है। और आपको यकीन करें, ईरान की टीम 12 की टीम थी और 14 बंदे उनके टेक्निकल ऑफिशियल्स उनके साथ थे। वाह। हम 12 की टीम थी और हम 3 से 4 बंदे हमारी टीम के साथ थे, और एक बंदा जो है वो इतने डिफरेंट रोल्स और इतने लोगों का काम हमें भी वो करता सारा है। कुछ हमें एज ए हेड कोच। अच्छा, ये सिर्फ वॉलीबॉल का प्रॉब्लम नहीं है, ये तो पाकिस्तान के जिस आप फील्ड में देख लें, हमें यहाँ पे एक सेटअप ऐसा है, कल्चर ऐसा है कि टीम हम बना देंगे लेकिन टीम में 2 लोग होंगे और वो 15 लोगों का काम कर रहे होंगे। और आई थिंक इट्स अ वेरी कल्चरल थिंग। बट इसमें अपडेट होने की जरूरत है ना। देखिए अभी पंजाब बड़ा सूबा है, अभी यूथ गेम्स हो रही हैं, टीम बनाएंगे, वॉलीबॉल की एक टीम बन गई, एक कोच होगा जी। अब ना उसके साथ असिस्टेंट है ना अब उस अकेले कोच ने लाइन के ऊपर खड़ा होकर टीम भी खिलानी है, टाइम आउट भी लेना है, चेंजेस भी करनी है, प्लेयरों को वार्म अप भी करना है, रेफरी के साथ भी डिस्कस करना है। मतलब एक बंदा एक्चुअली, अब कवानीन चेंज हो गया ना, कवानीन चेंज, अब 3 बंदे चाहिए बेंच के ऊपर, वो 3 तो राइट उनको इजाजत दो बैठने की, एक बंदा और एक मैनेजर पता नहीं कहाँ पर होता है, और एक कोच होता है वही सारा कुछ कर रहा होता है। इसलिए थोड़ा सा अपडेट होने की जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा तलहा, हम आपसे थोड़ी आपकी मेमोरी रिफ्रेश करेंगे। अभी जब आप फाइनल जीत के वापस पाकिस्तान आए, किस तरह का आपको वेलकम मिला, लोगों ने आपको किस तरह से अप्रिशिएट किया, स्पेशली आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, उनके बारे में बताएं। जी बिल्कुल, जब हम एयरपोर्ट से उतरे थे, यानी कि हमें आगे से पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन ने हमारा बहुत अच्छा इस्तकबाल किया था, बहुत अच्छा। स्पेशली हमारे जो चेयरमैन हैं और प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन यानी कि चौधरी यकूब साहब और प्रेसिडेंट खावर मीर साहब, वो खुद आए थे, खुद उन्होंने आए, हमारा वेलकम इस्तकबाल किया। उसके बाद मीडिया वगैरह आई थी, उनको इंटरव्यू दिया, फिर रात हमारा उधर स्टे भी किया होटल में, और हमें जिम खाना में, लाहौर जिम खाना में हमारा स्टे करवाया, और उसके अलावा हमें बहुत अच्छा खाना दिया। और हमें ये घर जब हम सुबह गए उसके बाद किराया वगैरह यानी कि जो हमारी फैसिलिटी वो हमें पूरी दी। और फैमिली की तरफ से आपको किस तरह का सपोर्ट था जब आपने कहा कि आप पढ़ाई, क्योंकि जाहिर है पढ़ाई भी बैलेंस करना विद प्रोफेशनल स्पोर्ट इट्स नॉट इजी। जी बिल्कुल, पढ़ाई जब गेम के वाले से आ जाता है तो फिर पढ़ाई को भी थोड़ा सा यानी कि थोड़ा क्या अब ये वो देख रहे हैं ये शो। नहीं, मैं बताता हूँ इस पे। जब कैंप मैं गया, कैंप को ज्वाइन किया तो 9th और 10th के पेपर हो रहे थे। अच्छा। और 8 से 10 प्लेयर मेरे सारे गए पेपर देने के लिए। पेपर दे के लेकिन फिर वापस भी आ गए। एक माह जो हमने पहले ट्रेनिंग सेशन किया वो 0 चला गया, क्योंकि 1 से 1.5 माह लगता है आपको। मार्क्स भी पूछूं पेपर कि नहीं, वो नहीं पूछने, मैं ब्रेक में पूछूंगी। एक्चुअली होना ये चाहिए कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको चाहिए ये कि जो बच्चे नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अंडर एज में, उनकी एकेडमिक सिस्टम होना चाहिए वहाँ पे, वो वहाँ पे रह के अपनी स्टडी भी कंप्लीट करें और स्पोर्ट्स भी साथ करें। अनफॉर्चुनेटली कि हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि जी बच्चों को, वो हमारे यहाँ एक ही वो है माइंडसेट है कि जी स्पोर्ट्स करनी है तो स्पोर्ट्स ही करनी है, पढ़ना नहीं है। हाँ, स्टडी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप साथ साथ स्टडी को भी कंटिन्यू करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम ही नहीं है। ये हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि काइंडली ऐसी एकेडमिक सिस्टम भी होना चाहिए कि बच्चों की स्टडी भी। एक बार चलें यहाँ पे, क्योंकि डिस्कशन हमारी बहुत है करने की, लेकिन हम अभी एक ब्रेक पे जा रहे हैं, थोड़ी सी शॉर्ट ब्रेक है। व्हेन वी कम बैक यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। आपने भी कहीं नहीं जाना, कीप वॉचिंग।
जी वेलकम बैक, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन स्पोर्ट्स टुनाइट। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान वॉलीबॉल के प्रेजेंट, जो कि बहुत इस वक्त ज़बरदस्त जा रहा है, स्पेशली अंडर 16 और अंडर 19, ये जो एज ग्रुप्स हैं उसके हवाले से। और अब हम थोड़ा सा फ्यूचर की तरफ भी बात करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं 3 बहुत इंपॉर्टेंट नाम, डिफरेंट रोल्स में डिफरेंट काम कर रहे हैं पाकिस्तान वॉलीबॉल के साथ, लेकिन तीनों के साथ बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी है। और हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि इस वक्त जो ट्रेनिंग वगैरह और फिर उसके बाद जो रिसेप्शन मिला पाकिस्तान टीम को, उसके बारे में थोड़ा सा आप और बता रहे थे। उसके बारे में जब हम जीते इस थाईलैंड में, उसी रात डीजी पंजाब स्पोर्ट बोर्ड चौधरी खिजर अफजाल साहब से मेरी बात हुई। उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया और उन्होंने हमें कहा कि आपको खुद लेने के लिए एयरपोर्ट पर आएंगे। और जैसे ही हमारी फ़्लाइट मतलब लैंड किया है, उन्होंने बाकायदा प्रोटोकॉल लगवाया और पूरी टीम को अंदर ही उन्होंने एयरपोर्ट के अंदर ही वेलकम कहा, बुके वगैरह दिए और अप्रिशिएट किया। और नेक्स्ट डे उन्होंने हमें अपने ऑफिस में इनवाइट किया। वेरी नेक्स्ट डे जब हम फ्री हुए और सारा रिसेप्शन वगैरह के बाद रात को यहाँ गुजारी और फिर सुबह हम उनके ऑफिस में गए, उन्होंने बच्चों को बहुत अप्रिशिएट किया। और इन बच्चे जो पंजाब के बच्चे थे स्पेशली, इनको हर बच्चे को 5 बच्चे थे हमारे पंजाब के, तो इन सबको उन्होंने 70,000 स्कॉलरशिप का अनाउंस किया कि इंशाल्लाह ताला अगस्त से इनको ये मिलना शुरू हो जाएगा। तला ऑलरेडी स्कॉलरशिप ले रहा था लेकिन सिल्वर कैटेगरी में था। अब इन सब को उन्होंने इस मेडल की वजह से प्लेटिनम कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया और 70,000 हर एक को उन्होंने स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया। इस तरह की बहुत ज़रूरी है, इस तरह के रिवॉर्ड्स और फॉर्म्स ऑफ अप्रिसिएशन। और हमारे ये जो यूथ है, इनकी पढ़ाई, इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि वी फाइंड वेज जिसमें आवर एथलीट्स कैन बैलेंस एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स एंड दे कैन बैलेंस देयर स्पोर्ट्स कमिटमेंट्स, क्योंकि आसान नहीं होता फैमिलीज़ के लिए भी बच्चों को इस फील्ड में। आई एम श्योर आप भी इस पूरे प्रोसेस से गुजरे हैं, आपको पता है कि कितना स्पेशली वॉलीबॉल जैसी गेम जिसको पाकिस्तान में उस तरह से अभी एक एक्नॉलेजमेंट लोगों में नहीं है कि एक्चुअली एक वायबल सिस्टम है भी कि नहीं। बट क्योंकि अब हमने अंडर 17 वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए भी क्वालिफाई किया है, हाउ ग्रेट इज़ दिस फॉर पाकिस्तान कि अब हम अगले साल अंडर 17 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे आपको पता है कि हमारी ये जो अंडर 19 टीम भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए गई हुई है, वो खेल रही है। इट इज़ अ ग्रेट ऑनर फॉर पाकिस्तान के लिए, जो है ना बड़ी ऑनर की बात है कि वो फर्स्ट टाइम वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए गई है और खेल रही है, अच्छा खेल रही है। जिस तरह ये हमारी अंडर 16 टीम ने भी क्वालिफाई की है नेक्स्ट ईयर 2026 में जो होने जा रहा है वर्ल्ड चैम्पियनशिप, उसके लिए इन्होंने क्वालिफाई की है। तो मैं समझता हूँ कि ये वॉलीबॉल की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, ये वॉलीबॉल फेडरेशन की बहुत बड़ी कामयाबी है। ये एक विजन था चेयरमैन साहब का, चौधरी मोहम्मद यकूब साहब का, पिछले कई सालों से वो इसी पे ग्रास रूट लेवल पे भी काम कर रहे थे। तो वो हमारी जो जो नर्सरी है वो बेहतर रिजल्ट दे रही है। और हमारी सीनियर टीम भी एशिया में अभी एवीसी नेशन कप में 2nd पोजीशन लेके आई है। हमारे माशाल्लाह जो 8 से 10 प्लेयर है, जिसमें उस्मान फरियाद है, मुराद वज़ीर है, मुराद खान है, आफाक खान है, एमल खान है, ये प्रोफेशनल खेल रहे हैं जो $1-1 लाख ले रहे हैं सीज़न का। तो ये भी एक मोटिवेशनल है यंगस्टर के लिए, यूथ के लिए, कि वो उनकी तरफ देख के स्पोर्ट्स की तरफ आए, वॉलीबॉल की तरफ आए, वॉलीबॉल खेलें और वो भी ये चांस अवेल कर सकते हैं। बिल्कुल। हम क्योंकि अब अभी डेवलपमेंट के ऊपर थोड़ी बात करें और करंटली पाकिस्तान की नेशनल टीम का 42nd रैंक है, कैसे अब इसकी इम्प्रूवमेंट की तरफ हम जा सकते हैं? क्या टूर्नामेंट्स खेलने पड़ेंगे? कंसिस्टेंट प्लानिंग क्या करनी पड़ेगी जिसके थ्रू वी कैन इम्प्रूव आवर रैंकिंग एंड देन उसके बाद ऑफ कोर्स हम ग्लोबली भी बेहतर कम्पीट कर मैं बात करूँ इस बारे में, बात यह है कि हम प्राइवेट सेक्टर से पैसे तो ले रहे हैं लेकिन वो इतने महदूद होते हैं कि हम उनको कंटिन्यू पूरा साल कैंप नहीं लगा सकते। कैंप लगाना और उसके बाद बीच में ट्रेनिंग टूर ऐड करना। अब हमारी टीम ने 4 माह का कैंप लगाया लेकिन हमें कोई ट्रेनिंग टूर नहीं मिल सका। क्यों? फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। हमें सीधा इवेंट पे भेज दिया कि चलें भाई जाकर खेलें और पोजीशन लेकर आएँ। अगर ऐसे ही टीमों को अगर कैंप लगना है लगाएं, लेकिन उसमें 1 या 2 ट्रेनिंग टूर मिल जाएं। बच्चों की खूबियों और खामियों का पता तब चलता है जब वो प्रैक्टिस मैचेस खेलते हैं अच्छी टीमों के साथ, फिर पता चलता है टीम को ऊपर कैसे लेके जाना है। अब आपस में प्रैक्टिस करके हम जितना मर्जी कम्बिनेशन कर लें लेकिन हमें उसकी खूबियों और खामियों का पता नहीं चल सकता।
तो एक टीम का अगर हमने 1 साल का कैंप लगाना है उसमें तकरीबन 2 से 3 ट्रेनिंग टूर चाहिए, और जिसका खर्चा पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन अपने तौर पर नहीं उठा सकती। हमारी रिक्वेस्ट सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से है, ठीक है आप हॉकी को दे रहे हैं पैसा, क्रिकेट पे लगा रहे हैं पैसा, लेकिन ये जो वॉलीबॉल एक्चुअली ये शहर की गेम कम है, देहातों की गेम ज़्यादा है। अब इस टीम में 12 लड़के, 12 के 12 लड़का, कोई भी एक लड़का किसी बड़े शहर से नहीं है, मतलब देहात से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई मुनीर से ताल्लुक़ रखता है, कोई बन्नू से ताल्लुक़ रखता है, एक बच्चा हमारा बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता था, मतलब है ये फैसलाबाद तांदले वाला से है, एक जीबी से था, मतलब एक गिलगित से फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में। जिन शहरों से ये बच्चे आ रहे हैं, इन शहरों में किस तरह की फैसिलिटीज मौजूद हैं, या कोई ये अपने तौर पर अपने शौक की वजह से उनके वहाँ पर जो वहाँ पर जो उनके हमारे सीनियर खिलाड़ी वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो मतलब है वो अपने शौक की वजह से नेट लगाते हैं। क्लब्स उन्होंने मतलब कोई कंटिन्यू इंडोर किया, प्रॉपर फैसिलिटीज तो इंडोर नहीं है, होंगी इन लेकिन छोटे इंडोर शहरों में आप स्वाय नेट लगने को और कुछ सहूलत मौजूद नहीं है। मतलब है तो गवर्नमेंट आप भी ये सपोर्ट नहीं जो कर रही। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये जो रिसोर्सेज की बात आप कर रहे हैं, ये किस चीज पे स्पेंड होने चाहिए? एक्चुअली आपको लगता है? पाकिस्तान गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हमारी फेडरेशन जो फेडरेशन परफॉर्म कर रही है, जो पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान का नाम बुलंद करें, उनका बजट ज़्यादा किया जाए, ठीक है, उनकी कारकर्दगी देखा जाए, उनकी डेवलपमेंट को देखा जाए, उनकी परफॉर्मेंस को देखा जाए। आप खोते और घोड़े को एक ही टांग में चलाए जा रहे हैं, मतलब जो एक टीम भी टूर नहीं करती उसको भी उतना फंड दे रहे हैं, जो साल में 10 टूर कर रहे हैं आप उसको भी उतना फंड दे रहे हैं, और परफॉर्मेंस आप देख नहीं रहे। यानी परफॉर्मेंस देखकर आप डोनेशन देना, फंड जो भी देना दें, लेकिन परफॉर्मेंस भी तो देखें। अब पाकिस्तान वॉलीबॉल अपने तौर पर चौधरी यूकूब साहब अपनी कितनी एफर्ट करें, स्पॉन्सर लेते हैं, मिन्नतें करते हैं, दोस्तों से यारों से वो एफर्ट करके वो पैसे कलेक्ट करते हैं, और फिर टीम के लिए आपको अभी उन्होंने बताया 2.5 से 3 करोड़ का खर्चा है। अच्छा, मैं इस पे फॉलो अप सवाल आप तीनों से ये सवाल है, वॉलीबॉल की लीग होना कितना ज़रूरी है, और इस तरह की लीग अगर हम कंटिन्यू करवाते रहें, सस्टेन करते रहें, उससे कितनी डेवलपमेंट हो सकती है प्लेयर्स? जी बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन। हम पिछले 2 सालों से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। हमारी बहुत सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं ट्रांस ग्रुप से, जो पीएसएल को भी कर रहे हैं। एक्चुअली मसला मेन फाइनेंशियली है स्पॉन्सर्स का, कि उस लेवल के स्पॉन्सर हमें नहीं मिल रहे कि जो लीग्स को टेक ऑफ कर सके, कि टीमें खरीद सके। जिस तरह हमारी ये लाहौर कलंदर है, पेशावर ज़िले में, इस्लामाबाद, पीएसएल में जो जितनी भी टीमें, इसी पैटर्न पे हम चाह रहे थे। हमारा ऑलमोस्ट वर्क जो है वो कंप्लीट है। हमारी उनके साथ एमओयू भी साइन हो चुका है ऑलमोस्ट ट्रांस के साथ। इंशाल्लाह इसी साल के एंड पे या नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हम इसको लॉन्च करने जा रहे हैं लीग को। हमारी वर्किंग इस पे टोटल कंप्लीट है। जस्ट हम जो स्पॉन्सर्स हैं उनको उनका ज़रा कोई पॉजिटिव जो है ना वो आंसर देख और रहे हैं जब कि वो टीम्स किस इस तरह के रिजल्ट्स लेके आएंगी, और जी, जब बिल्कुल। लोगों का एक उसकी तरफ रिसेप्शन अच्छा होगा, तो आई एम श्योर स्पॉन्सर्स भी इस चीज़ को ज़रूर नोटिस करेंगे। और हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, हमारे शोज़ के थ्रू हमारी भी कोशिश यही होती है कि हम अपने बाकी स्पोर्ट्स को भी वही हाईलाइट प्लेटफॉर्म दें जो हम बाकी क्रिकेट को देते हैं। हमारी सबकी यही कोशिश होती है, क्योंकि इस वक्त हम अब रीजनली भी इतना ज़बरदस्त कर रहे हैं, अब ग्लोबली भी हम चैलेंज कर रहे हैं और अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो वी रियली होप कि ये जो लीग वाली चीज़ है ये बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट हो। ऊपर लेके जाने के लिए, किसी भी गेम को ऊपर लेके जाने के लिए लीग बहुत ज़रूरी है। ईरान में अगर वॉलीबॉल ईरान का वॉलीबॉल दुनिया के टॉप पर है तो इस वजह से है कि उनकी लीग एक नहीं है, 3 कैटेगरी 3 से 4 कैटेगरी की उनकी लीग है, और हर एक में उसमें इतना पैसा डाल दिया। मैं खुद वहाँ पे 2 सीजन खेला ये खेला है, मैंने खेला भी है और कोचिंग भी की है वहाँ पे। मैंने कोचिंग की है उस लीग की। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने, अब आपका ईरान का जो सीनियर टीम है उनका कोच $25,000 पर मंथ ले रहा है। $25,000 आप अमाउंट देख लें कितनी बनती है, बहुत बड़ी अमाउंट एक है। माह दैट की, शोज कि उनकी कितनी कमिटमेंट है टुवर्ड्स वॉलीबॉल। बिल्कुल, और सिर्फ वॉलीबॉल नहीं, हर गेम में उन्होंने हर गेम की लीग शुरू करवाई है और हर गेम में उन्होंने इतना ही पैसा डाला है। उन्होंने अपने जाहिर है, आप गेम अपनी को यूथ के नेगेटिव बारे ले में जाना। प्रॉपर्ली सोचेंगे और यूथ के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे फाइनेंशियली तो अगर आप स्ट्रांग है ना, तो आप किसी भी चीज़ में, कोई भी स्पोर्ट्स है, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं तो आप बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ आप अपनी स्पोर्ट्स है या एजुकेशन है वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जब आपकी फाइनेंशियली बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं होंगी तो आप कैसे वो सर्वाइव कर सकेंगे। चलें, बिफोर वी रैप अप, तलहा आपसे आखिरी सवाल ये है कि अपने आप को अब आप एज अ अपना फ्यूचर आप क्या देखते हैं एज अ वॉलीबॉल प्लेयर? आपके
क्या पर्सनल वो है लिस्ट में, क्या है जो आप अचीव करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अभी भी इज़्ज़त दी है और इंशाल्लाह ताला आगे भी देंगे। जो मेरा जो एम है ना वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान सीनियर टीम है। सीनियर टीम है, मेडल भी उसको बता दें, represent- कौन सा मेडल आप जो है अपने नाम करना चाहते हैं, आपका अल्टीमेट गोल क्या है? जी वर्ल्ड कप और उससे ज़्यादा ओलंपिक इंशाल्लाह। ओलंपिक का गोल तो जाहिर है वो सभी का ख्वाब होता है, हर एथलीट का होता है। मुश्किल नहीं है। एक्चुअली नहीं है, क्योंकि जिस तरह हम अभी जा रहे हैं। वॉलीबॉल 4th लार्जेस्ट स्पोर्ट्स है इन द वर्ल्ड, जो मोर देन 200 कंट्री जो पार्टिसिपेट करते हैं वॉलीबॉल, जो एफिलेशन है हमारी वर्ल्ड फेडरेशन के साथ। हमारा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना इट्स नॉट बहुत मुश्किल भी नहीं है, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट भी है। जिस इन सेंस के हमारे जो हालात हैं फेडरेशन के अपने फाइनेंशियली, कि हमें पूरे साल में पीएसबी ने 5 बिलियन एक ऐड दिए कि जी ये आपको हेल्प कर दी है हमने, 5 मिलियन आप इसी में करें। हमारी जो ईरान के साथ जो एशियन चैम्पियनशिप फाइनल हुआ है, उससे पहले हमारी टीम ने जो सेंट्रल एशियन चैम्पियनशिप थी उसमें पार्टिसिपेट करना था, टिकटें हमने बाय कर ली थी। हमारे फाइनेंशियली कोई मामला ऐसे थे कि हम अगर उसमें पार्टिसिपेट करते तो हम एशियन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं कर ट्रस्ट सकते में थे। क्रिकेट के अलावा जितने भी स्पोर्ट्स के लोग हमारे शो में मौजूद जब आते हैं तो यही प्रॉब्लम्स ये सारी स्पोर्ट्स में पाकिस्तान में एक सवाई क्रिकेट के सारी का यही प्लेयर्स प्रॉब्लम जो हैं वो कम्पीट करने के लिए इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। अभी हॉकी के साथ भी यही हो रहा है, टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान प्रो में। लीग की पार्टिसिपेशन का कोई अभी पता नहीं हमें, क्योंकि यही चीज़ें जो है ये यही प्रॉब्लम्स हर स्पोर्ट में है। बट वी रियली होप कि हमारे शो के थ्रू भी और जो आपने इतनी बड़े अचीवमेंट्स किए हैं इनके थ्रू लोगों में ये चीज़ दोबारा से वाजे हो कि ये ज़रूरत है कि हम बाकी स्पोर्ट्स को भी उतना ही हाईलाइट करें जितना कि हम क्रिकेट को करते हैं। इंशाल्लाह आप तीनों का वॉलीबॉल बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स टुनाइट एंड थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग। अपने फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा थ्रू आवर